اسحاق ڈار کے ہجویری ہاؤس کو دوبارہ سجانے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ 2 سال بعد بھی انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ 12 کمروں کے گھر کی صفائی ستھرائی کرا دی گئی، جبکہ 2020 میں سابق وزیر خزانہ کی رہائش گاہ کو پناہ گاہ بنایا گیا تھا۔ اسی پر بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ جی بالکل رنشا، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ایک بلاک گلبرگ میں واقع گھر نمبر 7 کا تزئین و آرائش کا معاملہ ہے، اور اس والے سے 12 کمروں کے اے سی اور لائٹس چوری ہونے پر بھی جو ہے تشویش کی جا رہی ہے کہ یہ لائٹس اور اے سی کہاں پہ گئے۔ بہرحال اس والے سے افسران جو ہیں انتظامیہ پر برہم ہوئے ہیں۔ اس والے سے اگر بات کی جائے 2020 میں تو سابقہ حکومت نے ہجویری ہاؤس کی نیلامی کروانے کی کوشش کی۔ دوران نیلامی اور 3.5 سالوں سے خالی سابق وزیر خزانہ کے گھر کے اے سی اور لائٹس چوری ہو گئے، جس میں 3.5 سال بعد انتظامیہ کو خیال آ ہی گیا اور انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ آج لان کی 6 فٹ لمبی جو گھاس ہے اور پودوں کو تیار کیا جانے لگا ہے، جس میں کمروں کے پانی سے دھلائی بھی کی جا رہی ہے، اور 4 کنال 17 مرلے کے ہجویری ہاؤس کی مکمل واشنگ و صفائی ستھرائی کروائی جا رہی ہے۔ چوری ہونے والے آئٹمس انتظامیہ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ سرکاری خزانے سے یہ آئٹمس نہیں خریدے جا سکتے اور نہ ہی یہ لگائے جا سکتے ہیں۔ اس والے سے تشویش ہے انتظامیہ کو، جبکہ 2020 کی اگر بات کریں تو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی رہائش گاہ کو پناہ گاہ بنایا گیا۔ انتظامیہ نے پناہ گاہ کو آج ختم کروا دیا ہے، جس میں 12 کمروں پر مشتمل 4 کنال 17 مرلے کی کوٹھی کی سرکاری بولی جو ہے وہ 18 کروڑ 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی، اور 2020 28 جنوری میں یہ ہجویری ہاؤس کی نیلامی کی بولی میں کوئی ایک شہری نے بھی حصہ نہیں لیا۔ موجودہ صورتحال میں آج انتظامیہ وہاں پہ پہنچی، جو بند گھر تھا جو اس کی تحویل میں تھا انتظامیہ کی، اس کو کھولا، اس کو لش پش کرنے کے لیے، تزئین و آرائش کرنے کے لیے رنگ و روگن کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ جو اگی گھاس ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ وہاں پہ مالی جو ہے وہ زیر جو اس کا فوٹیج ہے، ویڈیو ہے، اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جتنے بھی پودے ہیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو پانی پریشر جو ہے فرش جو ہے ان کو بھی صاف کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے پریشر سے جو ہے کمروں کی دیواروں کو بھی جو ہے وہ ان کی صفائی کی جا رہی ہے، اور موجودہ صورتحال میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ گھر کو دوبارہ سے جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین کیا جائے۔ اور موجودہ صورتحال یہ بھی ہے کہ لائٹ محکموں کی ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ سابق وزیر خزانہ کے گھر کو لش پش کرنا ہے، اور اس والے سے دیکھنا یہ ہے کہ چوری شدہ آئٹمس بارے انتظامیہ کیا حکمت عملی بناتی ہے کہ اس کو دوبارہ سے لائٹس یہاں پہ لگیں گی، دوبارہ سے یہ گھر جو ہے وہ جگمگ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مگر اس وقت جو ہے اسحاق ڈار جو سابق وزیر خزانہ تھے، ان کا جو ہجویری ہاؤس ہے اس کو اب موجودہ صورتحال میں لش پش کیا جا رہا ہے۔ صفائی والے بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، مالی بھی پہنچ گئے ہیں، انتظامیہ کے افسران بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہے گھر کے اندر کی صفائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ 12 کمرے جو ہیں اس گھر کے ہیں یا جہاں پہ لائٹس لگی ہوئی تھی، اور وہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع انتظامیہ کے مطابق کہ جو لائٹس ہیں ان کے بٹن بھی جو ہے وہاں پہ رہنے والے جو تھے پناہ گاہ میں، اور اس کے بعد جو وہاں پہ انتظامیہ جو تھی وہاں پہ موجود انتظامیہ اس وقت میں اتار کے لے گئی، اور اس وقت جو ہے ہجویری ہاؤس کو ویسے ہی دوبارہ سے لش پش کرنا ہے جیسا پہلے تھا، کیونکہ یہ ایک خوبصورت گھر تھا جس کے بارے میں جو ہے باقاعدہ طور پر ایک ڈائریکشن آئی تھی نیب کی طرف سے کہ اس کی فوری طور پر نیلامی کروائی جائے، اور نیلامی جو ہے وہ عدالت کی طرف سے رکوا دی گئی اور حکم امتناعی دیا گیا، اور اس کے بعد اس نیلامی میں 3.5 سال جو ہے یہ گھر انتظامیہ کی تحویل میں رہا، جس کو آج کھول دیا گیا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر جو لان ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے، نیٹ اینڈ کلین کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو پودے ہیں اور وہاں پہ ان پودوں کو بھی دوبارہ سے لگایا جائے گا، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جس طرح کا گھر تھا ویسے ہی واپس کرنا ہے، اور اس وجہ سے تمام گھر کو صاف کیا جا رہا ہے۔ لاہور نیوز نے یہ فوٹیج حاصل کی ہے جس میں باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام تر جو اندر کے کمرے ہیں ان کی بھی صفائی کی جا رہی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر جتنے بھی فانوس ہیں ان کو بھی صاف کیا جائے گا۔ جو وہاں پہ اس وقت ان کی دیواریں ہیں اس کو بھی جو اس وقت پریشر پانی کے پریشر سے صاف کیا جا رہا ہے، کیونکہ گھر کے اندر ایک اسمیل بھی پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کافی زیادہ اس گھر میں جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ صورتحال سی جالے جو ہے لگ گئے تھے،
घर की दीवारें जो हैं वहां पर काफी ज्यादा जो है वो सैलाब से जो है बंद दरवाजे थे, बंद कमरे थे, जिसकी वजह से जो कोई आज तक अंदर गया नहीं था। 3.5 साल में सिर्फ एक दफा इसको पनाहगाह बनाया गया, जिस पर अदालत की तरफ से हुक्म आया कि इसको पनाहगाह फौरी तौर पर खत्म किया जाए। उसके बाद इस पनाहगाह को उठाकर इस घर के सामने एक ग्राउंड है वहां पर शिफ्ट किया गया, शेल्टर होम बनाया गया और उसके बाद इस घर को दोबारा इंतजामिया की तहवील में ले लिया गया। आज इंतजामिया ने दोबारा इस घर को दोबारा खोला है और गुलबर्ग 7 में हजवेरी हाउस जो 7 नंबर घर से मशहूर है उसको आज सफाई धुलाई की जा रही है ताकि इस घर का दोबारा से जो है दोबारा से इस घर की रौनकें बहाल हों। इसको लश-पश करना है और इसको लश-पश करने के लिए तमाम इंतजामिया मुतहरिक है और जरा ये भी बता रहे हैं कि साबिक वजीर खजाना जो है इसी साल जो है पाकिस्तान में भी आ सकते हैं और सबसे पहले वो अपने इस घर में आएंगे जिस घर से उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत था और उन्होंने 3.5 साल से जो है इस घर को बचाए रखा और इस घर को बाकायदा तौर पर इसको दोबारा से जो इसको लश-पश किया जा रहा है। चूंकि ये घर जो है साबिक वजीर खजाना की अहलिया तबस्सुम डार के नाम पे है और इस घर को जो है उनके हवाले करना है, इसकी चाबियां उनके हवाले करनी है। इस वजह से इस घर को बिल्कुल इस वक्त इसके सजाने की तैयारियां की जा रही हैं, इसको लश-पश किया जा रहा है ताकि दोबारा से इंतजामिया जो है ये इसकी चाबियां जो है उनके घर वालों के हवाले कर सके। जी इमरान, घर को लश-पश तो किया जा रहा है लेकिन जो चीज़ें चोरी की गई थी उनकी इन्वेस्टिगेशन अब तक क्यों नहीं मुकम्मल हो सकी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त जो है वो दोबारा वापस आ सकता है। इंतजामिया को ये नहीं पता था मगर चूंकि दोबारा से अब नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है, चूंकि पहले आज से 1-1.5 माह पहले देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो ये काम नहीं हो सकता था। अब चूंकि नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है तो साबिक वजीर खजाना इसहाक डार जो है वो इस वक्त लंदन में मौजूद है मगर उनका ये जो घर है उसको जो है उसकी नीलामी का मामला था और इंतजामिया की तहवील में था और यहाँ पे जो एसीज और जितने भी यहाँ पे लाइट्स थे वो बिल्कुल उनको उतार दिया गया, वो चोरी हो चुके हैं और इसकी जो अब इसका जो खमियाजा है वो इंतजामिया के की तरफ ही जाएगा। वो इसलिए कि जो जिम्मेदारी थी वो इंतजामिया की थी और अब दोबारा से इसका तखमीना बनाया जाएगा और इस बात की काफी तशवीश भी ऊपर पाई जा रही है मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर एक घर को नीलाम करवाना था तो उसके बारे में बाकायदा तौर पर तखमीना लगाया जाता कि इसमें इतने एसी हैं, इतनी जो लाइट्स हैं और महंगी लाइट्स लगी हुई थी। अब दोबारा से उन लाइट्स की खरीदारी जो है वो की जाएगी। अब किस तरह से की जाएगी ये इंतजामिया इस बारे में कोई हिकमत अमली पंजाब हुकूमत से मिलकर बनाएगी, क्योंकि अभी तक वर्किंग पेपर में यही है कि इसका जो सरकारी जो तखमीना है वो नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये प्राइवेट हाउस है, तो प्राइवेट हाउस में सरकारी तखमीना बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। वैसे तो इसकी सफाई धुलाई भी नहीं की जा सकती मगर चूंकि अब हुकूमत आ गई है और जारी बात है हुकूमत का प्रेशर भी है इंतजामिया के ऊपर और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में यही देखा जा रहा है कि घर को अंदर से साफ किया जा रहा है और पानी के प्रेशर से जो है दीवारें जो है उनको भी साफ किया जा रहा है और इसके साथ साथ लॉन जो है उसको भी दोबारा लश-पश किया जा रहा है, बनावट की जाएगी और अगले 2 से 3 रोज में इस घर को बाकायदा तौर पर दोबारा से वैसे ही इसको लश-पश करना है। ये टास्क सौंपा गया है इंतजामिया को और इंतजामिया ने इस वाले से वहां पे 15 से 16 बंदों की टीम लगाई है जिसमें मुख्तलिफ लाइट महकमों के लोग मौजूद हैं जो सफाई और इन फूलों इन दरख्तों को दोबारा से साफ कर रहे हैं और इन दरख्तों की जो है कटिंग भी की जा रही है, घास की कटिंग की जा रही है। जो माली हैं उनको लगा दिया गया है काम पर और इसके साथ साथ जो इस घर में अभी भी जो आइटम्स जो हैं उनका नंबर शुमार बताया जा रहा है, तकरीबन कोई 10 के करीब एसी थे जिनको उतार कर ले जाया गया और वो दोबारा से यहाँ पे नजर नहीं आए। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो लाइट्स थी वो भी गायब हैं और जो स्विच थे वो भी नहीं लगे हुए, इवन के कुछ कमरों के कॉटन जो हैं पर्दे वो भी जो है वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब ये मौजूदा इंतजामिया इसके बारे में क्या हिकमत अमली अपनाती है इस हवाले से जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ या मौजूदा गवर्नमेंट को बताया जाएगा और मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन आएगी इसके ऊपर हिकमत अमली बनाई जाएगी। मगर सवाल फिर वही आ जाता है कि 3.5 साल पहले इस घर को नीलाम करवाने के अहकाम दिए गए कौमी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से और उसके बाद जो है नीलामी का जब अमल शुरू हुआ 2020 में तो हम यहाँ पर गए, यहाँ पे बाकायदा तौर पर 18 करोड़ रुपए नीलामी
नीलामी का अमल जो है वो पहली बोली से शुरू हुआ, मगर यहाँ पे किसी ने हिस्सा नहीं लिया और उसके बाद अदालत की तरफ से हुक्म इम्तनाई आ गया और उसके बाद फिर जो है मौजूदा गवर्नमेंट, साबका गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे शेल्टर होम बनाया गया, पनाहगाह बना दी गई, जिसके बाद इस घर को पनाहगाह तो बनाया गया था, तो क्या इसकी कोई मुतबादिल जगह ली जाएगी? पनाहगाह जो है वो आरजी पनाहगाह बनाई गई थी। इस घर की सामने ग्राउंड है, वहाँ पे जो गुलबर्ग 7 और हाउस नंबर जो है वो ये गुलबर्ग जो एच ब्लॉक है, यह इसकी घर के सामने वाली जो ग्राउंड थी, जो पार्क था, वहाँ पे वो शेल्टर होम बनाया गया, वहाँ पे लोगों को बिठाया गया। मगर उसके बाद इस शेल्टर होम को तमाम जो यहाँ पे मोहल्लेदार थे उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, अदालत में भी जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद वहाँ से शेल्टर होम से इस जो पनाहगाह को, आरजी पनाहगाह को उठा लिया गया और आज बाकायदा तौर पर इस सामने वाली पार्क को भी जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। इस घर को भी मेंटेन किया जा रहा है। इसकी तज़ीन और आराइश के लिए तमाम इंतजामिया अब मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो गया। चूंकि 3 दिन में दोबारा से जो इसहाक डार की बेगम के नाम चूंकि ये घर है तबस्सुम डार के नाम, तो उनको ये चाबियां मसूल करवानी है, उनको चाबियां वापस देनी है और इस घर को लश पश करके दोबारा से लाइट से जगमग करके देना है। तो वो इंतजामिया ने 3 दिन बाद उनको चाबियां वापस करनी है। इससे पहले तमाम घर की जो है वो तज़ीन और आराइश करनी है, उसके बाद जो है घर की चाबियां जो है बाकायदा तौर पर इसहाक डार जो साबिक वजीर खजाना थे उनकी फैमिली को दी जाएंगी। और इसके साथ साथ इस घर जो इसके सामने पार्क है उसको भी तज़ीन और आराइश उसकी भी शुरू कर दी गई है। वहाँ पे भी जो है मुतलका महकमों के जो इस वक्त जितने भी वर्कर्स हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं और इस वक्त इंतजामिया जो है इस घर के लिए बहुत ज्यादा जो है वो भागदौड़ कर रही है। चूंकि इस घर में बाकायदा तौर पर 2 से 3 दफा नीलामी हो चुकी है 2020 में और उसके बाद इस घर को जो है वो बचाया भी गया, बल्कि बचाया नहीं गया बल्कि इसके लिए पूरा बाकायदा एक केस चल रहा है और अभी भी अदालतों में केस है, मगर उसके लिए कबल अज वक्त कुछ नहीं कह सकते। मगर मौजूदा सूरत हाल यही है कि ये इस घर को बाकायदा तौर पर जो है वो वापस आज 3 रोज बाद इसकी चाबियां देनी है उनकी साबिक वज़ीर खजाना की इसहाक डार की फैमिली को और इस घर को लश-पश करना है, दोबारा रोशनियां जो है वो बहाल करनी है, दोबारा से जो यहाँ पर जो एक ठीक है इमरान, हमारे साथ ही रहिएगा। आप हमें ज्वाइन किया है इस वक्त फयाज चौहान साहब ने, उनसे हम बात करते हैं। फयाज साहब आपके वक्त का शुक्रिया। हमें बताइएगा इसहाक डार की वापसी की तैयारियां हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये क्राइम मिनिस्टर मकसूद चपरासी साहब की हुकूमत ने यही करना है ना, लेमू जो है ना 1000 रुपये से ऊपर किलो करना है और इसहाक डार को वापस लाना है और सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब को लीगलाइज करके पाकिस्तान लेके आना है। इन्होंने यही करना है, इन्होंने और क्या करना है। कौम मर रही है, 600 रुपये किलो की मुर्गी हुई है और तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, महंगाई का, लाकानूनियत का। गवर्नर को जनाब आइन की धज्जियां उड़ा के जनाब एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जनाब 17वें ग्रेड का अफसर वो गवर्नर को उतार रहा है। इन्होंने इनसे अब यही तो रखेंगे ना, इन चोर लुटेरे नौसरबाज अगर इक़्तिदार में आएंगे तो फिर आप यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि जिस इसहाक डार को अदालतों ने प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करके उसके केस को ये ऑर्डर किया हुआ है कि उसने नीलाम करना है उसका घर, ये उसका नीलाम करने के बजाय उसको जनाब उसकी लशपश कर रहे हैं, उसको जनाब रेनोवेट कर रहे हैं और माही आवेगा तो फुला नल धरती से जावांगी का माहौल बना के उसके इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान की कौम भुगते ना जी पुराना पाकिस्तान, ये कहते हैं पुराना पाकिस्तान चाहिए, तो फिर लो जनाब पुराना पाकिस्तान, जितने चोर लुटेरे हैं सारों को जनाब भरपूर प्रोटोकॉल के साथ बुलाया जाएगा, इज्जत एहतराम दी जाएगी, कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। बहरहाल मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। इसहाक डार के घर के हवाले से जो फैसला है वो बनी गाला से नहीं था, वो किसी पीटीआई के दफ्तर से नहीं था, वो पाकिस्तान की अदालतों ने और पाकिस्तान के अदालती सिस्टम ने प्रॉपर तरीके से केस परस्यू करके फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में ये फैसला दिया था। उसको अगर ये बाईपास कर रहे हैं तो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये गंदी और स्याह तारीख रकम हो रही है। ठीक है जी, ठीक है। फयाजुल हसन चौहान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है इमरान अकबर। आपका भी बहुत शुक्रिया।